Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss all the questions of Negotiable Instrument Act for the UGC NET from the year 2016 to 2023. So friends, if you are new on this channel, I would like to recommend कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए because it will be very beneficial for you in preparation for judiciary and other legal exams. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Next 22, I promise to pay B rupees 50,000 and to deliver him my black horse on 1st March. This is a promissory note है, bill of exchange है no, an instrument payable on demand है no, फिर ये it is not a promissory note. 4 इसका आंसर रहेगा. ये क्या हो गया? ये तो एक प्रॉमिस हो गया कि प्रॉमिस कर रहा है. प्रॉमिस से वो एग्रीमेंट बन जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, है ना. अगर सिर्फ इतना लिखा होता है प्रॉमिस टू पे रुपीज 50,000 तो वो होता प्रॉमिसरी नोट. नेक्स्ट 37, when a promissory note, bill of exchange or a check is transferred to any person so as to constitute that person holder thereof, the instrument said to be negotiated. 1 is the answer. कहाँ मेंशन किया गया? सेक्शन 14 नेगोशिएशन की डेफिनेशन में ऑफ NI एक्ट. नेक्स्ट है 387. स्टेटमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेयरर. बिल्कुल ठीक है. फिर है होल्डर मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू द बेयरर. अब जो होल्डर है उसको फिर कंसिडरेशन की ज़रूरत थोड़ी है. देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहाँ पर प्रोवाइड की गई है? सेक्शन 13 में. फिर होल्डर की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है? दैट इज इन सेक्शन 8. और वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हु इज एनी पर्सन एंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ. तो वहाँ पर कंसिडरेशन की बात नहीं की गई है, तो ये हो गया इनकरेक्ट. तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 55, एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉलोड बाय डिलीवरी. अभी NI एक्ट का है. सेक्शन कौन सा पूछा हुआ है? सेक्शन है ये 50. ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन इंस्ट्रूमेंट टू एंडोर्स. Yes. Transfers the right of further negotiation to the endorsee. Yes. May exclude or restrict the right of further negotiation. Yes. May merely constitute endorsee as an agent. Yes. आपसे क्या रहेगा? ABCD. 4 is the answer. Next 86. Which of the following is true about bill of exchange? Bill of exchange require in its inception 2 parties. No, there are 3 parties. One says that you pay to party number 3 on my behalf. Bill of exchange or draft is written order by the drawer or drawee to pay money to pay. Yes. Bill of exchange are primarily used in international trade and are written orders by one person to his bank to pay the bearer a specific sum on a specific date. देखिए है ना 3 पार्टीज. एक कह रहा है बैंक को भाई उसको पे कर दिया, मतलब 3 पार्टी आ गई, तो ट्राइपार्टेड एग्रीमेंट होता है ये. फिर डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेंशन इन सेक्शन 5. ये रॉन्ग है, तो फर्स्ट एंड डी रॉन्ग, तो क्या आंसर बच गया? B and C. 3 इज द आंसर. Next 38, every offense punishable under section 147 negotiable instrument act is compoundable. 1 is the answer. नेक्स्ट 10, रीजन असर्शन है इसमें. क्या कहता है? देखिए असर्शन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर. ठीक है. फिर रीजन है बिकॉज इट इज सेड सो इन सेक्शन 13. सो दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आंसर रहेगा 1. और देखिए यहाँ पर ये कर दिया ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन. 1 इसका आंसर है. Next 100, which one of the following is not essential requirement to fulfill an instrument intending to be a promissory note? The instrument must contain a promise to pay. ये तो कंटेंट है किसका? promissory note का, तो ये ठीक है. Mere acknowledgement of indebtedness is sufficient. No, it is not sufficient.
सम ऑफ मनी मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी अनकंडीशनल, तो ये ठीक है। तो गलत क्या है इसमें? 2। सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बात करता है इसकी प्रॉमिसरी नोट्स की, उसमें वहां पर ये सब तीनों कंडीशन लिखी हुई हैं। इसका आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट 69 अदर्शन है, वेयर अ बिल इज अनइंटेंशनली कैंसल्ड बाय द होल्डर और हिज एजेंट, द कैंसलेशन इज नॉट अपरेंट देयर ऑन, द बिल इज डिस्चार्ज्ड। नो, इट इज रॉन्ग। Above principle laid down in 82. No, it is wrong. Both are wrong. One is the answer. Next 73. Which of the following are presumption as to negotiable instrument under section 118? The presumption as to contractual capacity. Yes. Maturity of instrument. No. Presumption consideration. No. Presumption of date. Yes. वहाँ लिखा हुआ कि डेट डली वही है, वही डेट प्रिज्यूम करेंगे, उसी डेट को दिया गया था, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी में दिया गया था। तो 2 इसका आंसर रहेगा, बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट 68, मैच करना प्रिंसिपल्स को जजमेंट से। इलीगल कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग अ चेक, अब ये एनआई एक्ट के डिसीजंस हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो ये था प्रदीप लोनारकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक अगेंस्ट अ कंपनी, एस रामास्वामी एमडी वर्सेस टी अयप्पा। फिर नेग्लिजेंस इन कलेक्शन ऑफ अ फोर्स्ड डिमांड ड्राफ्ट, यूबीआई वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग चेक, ऑब्वियसली सीबीआई वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस गोपीनाथ नायर। तो अब क्या बन गया इसका? 4312, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 69, अब बताना इसमें करेक्ट। ए प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इन विच time for payment is specified is a payable on demand. No. In which no time for payment, तो वो होता है। और ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन है नहीं 19 में लिखा हुआ है ये, ठीक है। If the endorser signs his name only, the endorsement is said to be blank, not full, ठीक है। तो ये सेक्शन कौन सा है? 16। फिर a wherein instrument may be constructed either as a promissory note or bill of exchange, the holder may at his election treat it as either and the instrument shall be thenceforward treated accordingly। ये बिल्कुल करेक्ट है। सेक्शन कौन सा है ये? 17 किसके बारे में बात करता है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है ना। फिर 4, if the amount undertaken or ordered to be paid is stated differently in figure and word, the amount stated in figures, no, in words shall be the amount undertaken, ठीक है। तो ये भी हो गया गलत। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया? ये है सेक्शन 18। तो 16, 17, 18 सेक्शन पूछ लिए हैं एनआई एक्ट के, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा इसका 3, करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट 68 अदर्शन है, इट शैल नॉट बी अ डिफेंस इन प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दैट द ड्रॉअर हैड नो रीजन टू बिलीव व्हेन ही इशूड द चेक दैट द चेक मे बी डिसऑनर्ड ऑन प्रेजेंटमेंट फॉर द रीजन स्टेटेड इन दैट सेक्शन। ये करेक्ट है। और ये कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 140 में, बिल्कुल ठीक है ये। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2। बोथ आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट 71 असर्शन है, पेयर अलोन वेदर अ कॉर्पोरियल पर्सन और इनकॉर्पोरियल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट इन केसेस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक। अब देखिए, व्हाट इज कॉर्पोरियल? विच कैन बी टच, जिसको आप टच कर सकते हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म में है, ठीक है। इनकॉर्पोरियल जिसको आप टच नहीं कर सकते, जैसे कि कंपनी। कॉर्पोरियल कौन हो गया? ह्यूमन बीइंग, मैन, ठीक है। अब क्या सिर्फ कंपनी लायबल होगी? यहाँ पर अगर ये नहीं होता तो अदरवाइज दैट वाज ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये है, तो कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर आर ऑल्सो लायबल, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो लायबल, ठीक है ना। तो 138 में ये नहीं लिखा गया है, तो दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 2। So friends, here we have discussed all the questions of Negotiable Instrument Act for the UGC NET from the year 2016 to 2023. अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन कोई एडवाइस हो, कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Minimum starts for 20. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको जरूर लाइक कीजिएगा। And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.